The patient came to me. He is 65-year-old male who came to me with the complaint of severe itching and scaling. The scales were so severe that he said कि if I come to your chamber, you'll have to sweep your chamber because over a period of day, I shed off almost grams, like a bag full of scales. So it is so difficult for me to travel. And because of severe scaling, the protein loss, there is pedal edema which has come up, a generalized edema which has come up. Handling a confectionery shop at Orissa itself, and the scaling scabs with severe itching and oozing, and oozing is not that much, but definitely because of protein loss, because of scaling, there is edema and generalized edema all over the body. This patient was being referred in a way to me like, doctor, this is a patient coming to me from Orissa. हमने एलोपैथी में सब ट्राई कर दिया, मुझे लगता है ड्रग रेजिस्टेंट है, तुम लोग कुछ कर सकते हो क्या इसमें? नहीं तो पेशेंट को आईसीयू में डालना पड़ेगा क्योंकि प्रोटीन लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, डिस्निया बहुत हो रहा है. वी आर सस्पेक्टिंग दैट ही माइट लैंड अप इनटू रीनल फेलियर इफ हिज पैरामीटर्स आर डिस्टर्ब. बट बिफोर दैट मैंने सोचा कि एक बार आपको दे दूँ, कर सकते हो क्या? तो आप बताओ, ले लो केस, नहीं तो छोड़ दो केस. तो सर ने तो कभी नहीं सिखाया छोड़ना, तो लेना ही तो पड़ेगा ही. और being homeopathic, if it comes to a challenge, he has already taken lot of Ayurvedic treatment and he feels because of Ayurvedic treatment since last 2 months the complaint has severely aggravated to the extent कि वो घर के बाहर भी नहीं निकल सकते. तो somehow he was brought to me because he had to travel almost 24 hours, and he also says कि I have dyspnea, but this is dyspnea is non-specific. He is non-diabetic, non-hypertensive. So now, do you want me to go ahead with the case, or should I take into steps, or should I narrate the whole case in a stretch? थोड़ा सा सीक्रेट रखना चाहिए ना, ठीक है, तभी मजा आएगा. So I am keeping the secret with you. So this is the summing up of the chief complaint. We believe in mind and body connection. We are homeopathic doctors, and without the connecting mind with the body, it is impossible to treat the disease. And as we all know, in aphorism number 16, aphorism number 1, aphorism number 3, we have all talked about aphorism number 9. We have talked about the invisible causes, the immaterial reasons behind the diseases, and those immaterial reasons are nothing but the emotional pathologies which make the man sick. Right? So we are here with the connection of body with the mind. And as you all know, I always believe that whatever general makeup you have, the constitution you have, body will never tell the lie. Patient can be deceitful. Patient can be a liar. Patient can be a pompous. Patient can show something falsification to you, right? Patient can be reserved, can hide, but the body will never hide anything because body is language of the mind. Please keep it in mind that body is language of the mind. The way you walk, the way you talk is reflection of the soul of your mind. So body never lies. So if body never lies, if you are a very busy practitioner, don't have time, so please learn to read the language of the body. It can be physiognomy, it can be emotional pathology, it can be pathology, it can be pathophysiology. But without understanding the body, don't go ahead to the mind. I always insist, like my first page of my case should actually be the reflection of the history of mind, what I am getting inside. So it has to be so perfect. It is mathematics. Mind and body should be correlated. So when we go, body never lies. Symptoms are reflection of the mind, as I said, and understand the pathology in depth. Without understanding the pathology, you will never understand anything. And understand the process through which the disease has developed.
which is called as pathophysiology, because without understanding pathophysiology you cannot explain anything, and definitely miasm is the key to unlock the case, and without miasmatic correlation you cannot unlock this case. So here we have skin. As we all know, we have to know the structure, the function of the disease. So when you talk about skin, you talk about psoriasis. So we all know the layer to which the disease belongs. As we are predictive homeopaths, we have 7 layers of the diseases, and we know that this is not the disease belonging to the ectoderm only, but this is a disease which is going higher up, because the disease comes from the dermis of the skin. So what are the cells, what are the tissues, can anyone tell me, which get affected in psoriasis? Psoriasis is a disease of which layer amongst them? Which are the cells which get affected due to psoriasis? Did you get my question? Tissue and the cell which is affected due to psoriasis. Anyone? You all have Googles? Mobile? Google up and let me know. Psoriasis affects which part of the body and which cell, which tissue? Come on, be quick. 1 minute. I told you we have to see the pathophysiology, the pathology. So which tissue? What is the seat of disease of psoriasis? What is the seat of disease of psoriasis? Can anyone pass on the mic? Anyone wants to share? इसमें क्या? What Google says? Epidermis में क्या? अभी 12 बजे भूख लगने को 1 घंटा बाकी है. एपिडर्मिस में क्या? गूगल से गाइड हाथ में. कम ऑन. Keratinocytes. Perfect. I give you a chocolate. So, skin. Yes. Psoriasis is the disease of the skin belonging to the layer of dermis, which affects the keratinocytes. Now, what are keratinocytes? And why keratinocytes? And why only keratinocytes? Everything has got a purpose, everything got a reason behind. कुछ भी हवा से उड़ के नहीं चिपकता बॉडी में, कुछ भी आके हवा से लगता नहीं है. आप अगर इधर बैठे हैं तो आपका एक पर्पस है, आपका एक कॉज है. अगर आपको ये बीमारी हुई भी है तो उसके पीछे एक बिहाइंड रीजन होगा, एक पर्पस होगा. बॉडी में पूरा स्किन टिश्यू था, इधर पे पोर्स थे, एपिडर्मिस था, डर्मिस था, फैट था, ब्लड वेसल्स थे. तो फिर सिर्फ और सिर्फ डर्मिस क्यों? राइट? सिर्फ और सिर्फ केराटिनाइज्ड टिश्यू क्यों? That is the reason what you should ask when the patient comes to you. Psoriasis तो है, बस सिर्फ ये पार्ट का psoriasis क्यों? सिर्फ ये पार्ट का psoriasis क्यों? सिर्फ लेग का psoriasis क्यों? Right? So you have to ask that question. Then you will see the mind unlocks. Right? So going to the ahead, you all stay with me, huh? So we all know the pathophysiology of psoriasis. So your Google master will tell you that any injury, any stress, everything is a result of a stress. So any injury, any stress, any susceptibility, this is not the language. What I am talking is language of, this is language of pathophysiology book, Robbins, the pathology book, Harsh Mohan, the books of skin diseases. I am not talking about organon. Okay? So they also have the same terminologies. They also say the same thing. But we are just two parts of the coin. We don't understand the connection. So when we are talking about psoriasis, so we have some environmental trigger, genetic susceptibility, which gives you prone to that psoriatic disease. That means we are giving the soil. So any injury, any stress, any emotional factor which hits the keratin tissue will give you an injury and increase antigen production, because of which there is an inflammatory response and there is a chronic inflammatory response which involves the T
T lymphocytes get activated, and this activation of dendritic cell leads to acanthosis, that is blackening and pigmentation. And because of this, as we have seen, keratic tissue, this keratic tissue has got a capacity, it goes from here, goes up, and the dead tissue gets accumulated up. आपको पता होगा ना, नहाते ही कुछ दिन तक ही तो मैल जम जाता है, तो वो जो मैल आप निकालें is nothing but the dead keratic tissue. ठीक है? So it is your own byproduct which is getting accumulated, and if you are not bathing properly, if you are not rubbing, scrubbing your body, so that dead keratic tissue gets accumulated and it is shedding off. So this epidermal acanthosis and keratinocyte proliferation comes up. See, the word is proliferation, the word is susceptibility, mark word keratin, word proliferation, word production. So there is an increased production of keratin tissue. So myasm, can anyone say which myasm? Psychosis. Yes, and since it is involving autoimmunity, the phase of the disease is syphilitic. So this is a case belonging to psychosyphilitic phase. Okay? The tissue which is getting affected is keratin. The seat of disease is skin, dermis. Okay? Fine, clear till now? So we are dealing with layer. Anyone from rectal? Layer. Psoriasis, which layer? Psoriasis is which layer disease? Chalo homework. So when we are talking about psoriasis, we are talking about primary insecurity. We are talking about the diseases coming out of insecurity, fear, and primary psychosis comes up when the primary psora fades, when the inflammation fades at this stage. If this injury would have come and the healing process would have stopped over here, then the cascade would have not started. But this primary inflammation failed, and therefore this has pushed it to psychosis and going towards syphilis. So all the insecurities which we have in our mind will prop up psychosis. So here we are in the phase of proliferation. That is the third stage of psychosis, that is proliferative psychosis. We'll definitely know how psychosis develops. So it is nothing. What aphorism number 189 says is that no external remedy or a malady can arise without the internal body supporting it. That means nothing can come from the air unless and until there is a soil which you give, a susceptibility which you give, and without which there is no disease which can come up. So something which is supporting, something which is a hurdle, नहीं तो प्राइमरी इन्फ्लेमेशन वही एंड हो जाता, कुछ तो ऐसा होगा जो प्राइमरी इन्फ्लेमेशन को पुश कर रहा है सेकेंडरी इन्फ्लेमेशन कॉज करने के लिए. सोरा को कोई तो ऐसा है जो पानी दे रहा है, या साइकोसिस को पानी दे रहा है, जो साइकोसिस बढ़ते जा रहा है. दैट इज नथिंग बट this aphorism which explains that is the emotional cause which is responsible, and every disease props up from imagination, from a cause, from an emotional pathology. Without a reason, there can be no effect. Every action has got an equal and opposite reaction. Footnote number 9, 6th edition of Organon equally says that an imagination, a thought process can be so vulnerable that it can produce any damn disease in the body. So this is what, that most severe diseases may be produced by sufficient disturbance of the vital force through the imagination and also cured by it. So if you are going from Nagpur to Mumbai, the journey you have taken, while returning back, you will return from the same journey. So if an imagination, if a thought, like if I fall down, the thought process was embarrassing, which can bring fever to me. So I have to give a medicine which will be able to give cure to that embarrassment, right? So if psoriasis is being produced, so what will be the cause for psoriasis? All that we are
is a result of our thoughts. Nothing comes from the air, nothing goes to the air. So if we have embarrassment, we are producing the results of embarrassment. हमारी जैसी सोच धारा होगी, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसे होगी वाणी। इसके ऊपर होम्योपैथिक डॉक्टर बोलते हैं जैसा सोचोगे वैसा पाओगे, जैसा डिजीज के बारे में या जैसा थॉट प्रोसेस प्रोड्यूस करोगे वैसी बीमारी आप पाओगे। सोच अच्छी रखो, धारा अच्छी रखो, बीमारी सोडिक लेवल पे रहेगी। जितना उस सोच को गहन करोगे, जितना सोच को पकड़ के रखोगे, उतना डिजीज बढ़ती जाएगी। अब ये कैसे होगा? ये सब बुक्स में है, मैं सिर्फ उसको कोरिलेट कर रही हूँ। दिस इज ऑल साइंटिफिक बेस्ड व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट एंड दिस इज इंटरप्रिटेशन व्हाट वी से। इंटरप्रिटेशन मतलब कोई कॉज आया, उस कॉज को हमारा माइंड इवैल्यूएट करता है, उसको प्रोसेस करता है, उस नॉलेज को, उस इंफॉर्मेशन को, और फिर उसके बाद उसका इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो वो कोई भी नॉलेज हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, एवरी सिंगल इंफॉर्मेशन, एवरी सिंगल इफेक्ट, एवरी सिंगल स्टिमुलस फ्रॉम द एनवायरनमेंट इज बीइंग प्रोसेस्ड इन अ ब्रेन। अब उस प्रोसेसिंग को कैसे करना है वो भी डिसाइड हमारा ब्रेन करता है, हमारा जेनेटिक्स डिसाइड करता है कि हम उसको कैसे प्रोसेस करेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर ये साड़ी है, ये साड़ी अगर मैं किसी महाराष्ट्र को दूँ तो इसको वो लुगड़ा की तरह पहन लेंगे। इफ आई गिव टू साउथ इंडियन दे विल हैव अ डिफरेंट स्टाइल फॉर वेयरिंग दिस 9 गज का मीटर। ठीक है, सो डिपेंड्स ऑन हाउ यू टेक द स्टिमुलस। सो एवरी स्टिमुलस विच इज कमिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल और द इंटरनल एनवायरनमेंट इज बीन इंटरप्रिटेड, it is being perceived and we see the result on the nervous system, and this nervous system will produce the neurotransmitters which will give you the disease, and thus the thoughts become chemistry. So that was nothing which was material, it was not the fall which was material, it was the emotion of embarrassment, the emotion of anger, the emotion of insecurity which will produce the result in the form of disease. So every emotion, if you are very delighted, you are in a very joyful mood, you will produce lots of dopamine, lots of serotonin. If you are in a very sad mood, that means your serotonin goes down, your dopamine goes down, your adrenaline rises up. If you are anxious, if I say, oh God, something happened over there, so lot of adrenaline will be produced which will give result to a disease, right? So thoughts become chemistry and thoughts become things. So this is the way, this is the process how this event can develop a result into your biochemistry. Got the point? How the emotions which have affected you can result the disease process. Okay? So this is a process to understand how immaterial cause affects the material body, how the vital force gets affected. So any external stimulus will go produce neurotransmitters, produce all the hormonal changes in your body, and those hormonal changes are going to bring up the effect in the form of pathology. Am I clear till now? So what we think, we become. That is again the third line. And beliefs create reality. How we believe creates whatever. I'll give you an example. If you believe in homeopathy, only then you will practice homeopathy, only then you will have medicine. The person who doesn't believe in homeopathy will never go to a homeopathic doctor to get the results. To get the results, you have to believe. And how this belief system develops? This belief system develops through your sensitivity, and this sensitivity comes up सबने ग्लास हैंडल किया है अपने हाथ में. What does, how you have to handle a glass? What does a glass say? Glass says, please handle me with care. Can you drop glass like that? No, it will break. ठीक है? So
this is nothing but the sensitivity which belongs to the constitution. ठीक, थोड़ा सा difficult होगा लेना, लेकिन you will get all these things winded and uncoiled till the end. So you have to keep it in mind क्योंकि post lunch में ये सब काम आएगा. So sensitivity belongs to the constitution, sensitivity belongs to the mind, and this sensitivity is very very important because this is the sole cause. ये sensitivity आपको समझने के लिए help करती है कि ये constitution plant को belong करता है, कौन से kingdom को belong करता है, ताकि वो मटीरिया मेडिका को सिलेक्शन में हेल्प कर सके. Wood says I am strong, but not as strong as stone. But I am sensitive to water. I am sensitive to mites. मुझे कौन मार सकता है? माइट्स खा सकते हैं, मुझे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, अग्नि मुझे जला सकती है, पानी मुझे डुबा सकता है, राइट? डुबा सकता है, it will float, but definitely it can rotten. So this is sensitivity of the wood. So you have to understand how the wood get affected. Then sensitivity of a stone. What does a stone say? I am very strong. I am very tough. अब मेरे को एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर देना है यहाँ पे कि मैं क्यों सेंसिटिविटी के बारे में बात कर रही हूँ, मेरे को क्यों कांच, वुड, स्टोन की बात करनी है यहाँ पे, जबकि हम सोराइसिस पे थे. ठीक, तो मैं इस लेवल पे ले जाना चाहती हूँ आपको कि क्यों केराटिन टिश्यू ही अफेक्ट हुई उसमें से. ये जो हमारा प्रश्न है कि भाई बीमारी में बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती थी, पर सिर्फ सोराइसिस क्यों हुआ, सिर्फ उस पर्सन को डायबिटीज़ क्यों हुई, उस पर्सन को सिर्फ थायराइड क्यों हुआ. हमको डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हाँ सर हमको थायराइड कैसे हो गया, हमारी तो फैमिली में थायराइड ही नहीं था, हमारी फैमिली में तो कैंसर का नामो निशान नहीं था, तो हमको कैंसर कैसे हो सकता है. आज से 25 साल पहले यू विल अग्री डायबिटीज़ वॉज नॉट सो कॉमन, राइट? तो क्या जेनेटिक डिस्पोजिशन ये सब कुछ है? क्या हम जीन्स के स्लेव हैं? अगर हम जीन्स के स्लेव हैं तो मुझे ये बताइए आज से 50 साल पहले कैंसर की क्या अवस्था थी? कुछ भी नहीं. कैंसर किधर था? कहीं भी नहीं था. क्या हमारे लिए इतना कॉमन डायबिटीज़ को देखा जाता था? आई रिमेंबर माई ग्रैंड फादर आई हर्ड कि उनको डायबिटीज़ हो गई, तो ही वॉज समवेयर 85 और इससे पता चला था कि उनके यूरिन को इंसेक्ट्स अट्रैक्ट कर रही थी. बस इतना ही पता चला एंड ही वॉज डायग्नोज्ड एज डायबिटिक. बट आज एक छोटे से बच्चे को भी पता होगा डायबिटीज़ क्या है, क्योंकि उन्होंने अपने घर में अपने दादा, काका, मामा सबको इंसुलिन लेते हुए देखा है. इट हैज़ बिकम सो कॉमन. Every home has got a diabetic patient. So if you say that you are slave to your genes, तो इतने डायबिटिक्स कहाँ से आ गए, राइट? तो ये डायबिटिक्स जो पैदा हुए हैं, ये जो डिजीजेस पैदा हो रही है, ये आपकी सेंसिटिविटी को बिलोंग कर रही है. और जितना हम सेंसिटिव होते जा रहे हैं, हमारी जनरेशन जितना अफेक्ट होती जा रही है, उतनी डिजीजेस बढ़ती जा रही है. So we are talking about something beyond genes, right? So something beyond genes is epigenetics. This is the most advanced science of today's world, and this talks about everything. It talks about your genes, it talks about environment, it talks about everything. And if you understand what is epigenetics, आप अपने हर केस को बहुत easily solve कर पाओगे, right? अगर आप ये बोलते हो कि हमारे खानदान में तो कभी कैंसर था ही नहीं, तो फिर कैंसर कहाँ से आया? आज इतने बच्चे हाइपर एक्टिव है. सर मुझे ये बताइए कि पुरानी जनरेशन में कितने बच्चे हुआ करते थे? एक घर में 10-10, 12-12 बच्चे होते थे, और आज एक माँ एक बच्चे को संभाल पाती है, वो भी नहीं संभाल पाती. तो अगर सिर्फ जेनेटिक्स इम्पॉर्टेंट है, तो फिर ये बच्चे कहाँ से प्रोडक्ट आ रहे हैं? ये बाय प्रोडक्ट किसका है? ये बाय प्रोडक्ट हमारा ही है. तो ये एपिजेनेटिक्स को समझने के लिए, डिजीज को समझने के लिए आपको पूरा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा. कमिंग बैक टू our keratin tissue again. ठीक है, we are talking about emotions, we are talking about the thoughts, we are talking about the belief system. हमारी सबकी विचारधारा जो हमको बीमार कर रही है, हमारी सोच, हमारे इमोशंस हमको बीमार कर रहे हैं, ना कि हमारी डिजीज हमको बीमार कर रही है. तो आपको एक सरप्राइज बता दूं, when I was surfing about keratin tissue, exact what I could get is
It is a psychosyphilitic disease, a chronic inflammation where there is lot of scaling, itching and want to shed off. ठीक है, तो डिजीज क्या बोल रही है, बहुत सारी चमड़ी निकालना है मुझे. डिजीज क्या बोल रही है, मुझे बहुत सारा स्केलिंग करना है, मेरे को बहुत सारी डेड टिश्यू को फटाफट उस साइकिल को बढ़ाना है. जो साइकिल 8 से 10 दिन लेती है वो एक सोरियाटिक पेशेंट को 2 से 3 दिन लगता है उस प्रोलिफरेशन की प्रोसेस को. तो इंक्रीज प्रोडक्शन एंड इंक्रीज जनरेशन ऑफ केराटिन टिश्यू. Then what is keratinocyte? Then keratinocyte, as we see, they are the most toughest protein of the body. You all must be knowing कि केराटिन टिश्यू वहाँ डिपॉजिट होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा घर्षण हो. हमारा ट्रकिया जहाँ पे एयर एंटर होती है वहाँ पे केराटिनाइज टिश्यू, राइट. हमारा म्यूकोजा जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होगा वहाँ पे केराटिन टिश्यू होगी. द टफेस्ट ऑर्गन्स, द स्किन will have keratin deposition. So keratin is something which helps you at the level of skin to get connected to the environment, यानी attachment to the environment. ठीक है, तो keratin का structure क्या है? It is made up of a tough fibrous tissue, a protein. Function क्या है? It helps you to connect to the environment. Okay, and as we know, it goes up and the layer goes up and the dead tissue gets collected on the superficial layer. So this keratin tissue is a highly specialized epithelial tissue and the function is separation of the organism from its environment. So what is the function of keratin tissue? Is to separate the organism from the environment. तो आपको keratin tissue वहाँ मिलेगी जहाँ पे environment से direct contact आ रहा है, जहाँ पे रेस्पिरेशन एयर से डायरेक्ट कांटेक्ट आता है तो आपको ट्रकिया में भी केराटिन टिश्यू मिलेगा. ठीक, म्यूकोजा जहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट आएगा तो इट बिलोंग्स टू सेपरेशन एंड इट हेल्प्स इन केमिकल एंड इम्यून सेल रिस्पॉन्स अगेंस्ट इंजुरी एंड इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द बॉडी. सो व्हाट इज इंटीग्रिटी? इज एसोसिएशन, वर्क इन हार्मनी. सो केराटिन हैज गॉट 3 functions. Okay, he had chronic cough with dyspnea for which he was being admitted. He is a chronic alcoholic and because of which he has fell down and he was admitted and he had fracture over his leg foot and 3 years back he was being operated for cataract. His family history is like his father died when the patient was only 12 years of age and in those days tuberculosis used to be very fulminant. जैसे आज का पेशेंट बोलते हैं हमको कि मैडम जैसे आज के समय में आप कैंसर को देखते हैं वैसे हमारे समय में टीबी को देखा जाता था. पेशेंट को एकदम आइसोलेट किया जाता था, हमको बिल्कुल घृणा की नज़रों से देखा जाता था और पूरा समाज हमको बहिष्कृत कर दे, इस तरीके से टीबी का ट्रीटमेंट होता था. लेकिन मैं सिर्फ 12 साल का था उस समय और मैंने अपने पिताजी को पूरी तरीके से हैंडल किया एंड आई हैड सिस्टर्स एंड वो टेक केयर क्योंकि मैं सबसे छोटा था तो सारी जिम्मेदारियाँ मेरे कंधे पे थी. He has got a wife who is 60 years, 4 daughters and 2 sons and 1 daughter is diabetic and that diabetes is during pregnancy. He is chilly and he has addiction to all kinds of alcohol, smoking, pan. He is a chronic alcoholic since 25 years, more than 25 years. Thirsty, large quantity of water, dreams, snakes after watching television. He says कि मेरे को बहुत सारे सपने दिखते हैं और वो सपने में मुझे दिखता है कि मैं बहुत सारे डर रहा हूँ. ऐसा नहीं है, मैंने तो बहुत मुद्दे जलाए अपने हाथों से, तो डर किस बात का? मुझे डर वर नहीं लगता है, बस मेरे को सपने में दिखते हैं पर मेरे को किसी का डर नहीं है. इन्हीं हाथों से जिसको किसी को जलाया हो तो डर किस बात का? और मेरी मेमोरी ना बहुत शार्प है मैडम, आपको क्या पता. एंड आई नेवर फॉरगेट ड्रीम्स. ही इज राइट हैंडेड पर्सन. स्पीड इज, बोले क्या स्पीड बोलते हो आप? एवरेज तो कर लो, जो आप काम 100 की स्पीड से करोगे मैं 80 से कर लूँगा.
बात ज़रूर है, उनकी वाइफ ने बोला कि ही इज क्रॉनिक अल्कोहलिक एंड सिंस मोर देन 15 years डेली ही टेक्स अल्कोहल डेली एंड ही वांट्स अल्कोहल इवन ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट। बोले हम सिंधी लोग हैं, हमारी फैमिली में रोज सुबह पराठा आता है तो इनके लिए दारू आती है। इस लेवल तक कि वो एडिक्टेड है और इस लेवल तक कि वो प्रॉब्लम में है। एंड हमने उनको धमकाया है, इनके बेटे ने उनको धमकी दी है कि अगर आप दारू बंद नहीं करोगे तो हम आपकी दवाई नहीं कराएंगे। तो अभी 1 महीने से हमने फोर्सफुली बंद करवाई है, लेकिन फिर भी ये रोज पीते हैं। सो दैट इज व्हाट द पेशेंट वाज कंसर्न, स्मोकिंग, टोबैको, पान, गुटखा, एंड ही वाज अ पर्सन हु वुड टॉक लाउडली एंड ही सेड कि मुझे बहुत क्राउडेड प्लेसेस में जाना पसंद नहीं है। कमिंग टू द चाइल्डहुड, I would say yes, he started talking by himself कि मैडम हम पहले छत्तीसगढ़ में पैदा हुए, आपको नहीं पता होगा, पहले छत्तीसगढ़ जो है, रायपुर जो है वो एमपी का हिस्सा हुआ करता था। मेरा जन्म तो वहाँ हुआ और मेरे पापा जब मैं 12 साल का था तो ट्यूबरक्लोसिस से ग्रसित हुए और वो उनकी डेथ हो गई। लेकिन वो जो समय था हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट समय था और 12 साल की उम्र में ही मेरे को पापा को लेके जाना 6 किलोमीटर दूर वो सिटी हॉस्पिटल हुआ करता था और हॉस्पिटल में जाना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था। बस की सेवाएं थी, लोकल बसेस थी, तो पापा को लेके जाना लेके आना ये मेरी जिम्मेदारी थी। मेरी सिस्टर्स थी लेकिन उस समय तक की 2 बहनों की शादी हो गई थी तो घर की जिम्मेदारी मुझे संभालनी पड़ी। और फिर भी क्या हुआ, मेरे जो काका वगैरह थे वो 25-50 रुपये दे देते थे, बहुत था उस समय में 25-50 रुपये, आपको क्या बताना, और बस ऐसे गुजारा हो जाता था। लेकिन दुर्दैव में मेरे पापा की डेथ हो गई और फिर सारी जिम्मेदारी मुझ पे आ गई। मम्मी ने मेरे मामा जी से बात की और उनसे पूछा गया कि तुम किस बात में इंटरेस्टेड हो, तो उन्होंने कहा कि क्या काम करना चाहोगे, तो मैंने कहा कोई भी काम कर लेंगे आप जो बोलोगे। तो कॉलोनी से आई स्टार्टेड वर्किंग बाय गिविंग स्मॉल गुड्स, इधर उधर छोटा बहुत 10-20 रुपये का सामान बेचता था। और फिर मैंने पान की शॉप डाली जब मैं 14 से 15 साल का रहा हुआ था। तो ही स्टार्टेड अर्निंग एट 15 years of age और क्योंकि मुझे कमाई करनी थी तो मैंने पढ़ाई करना छोड़ दी एंड ही लेफ्ट स्टडीज आफ्टर 9th standard, क्योंकि मैंने अभी आज कि फाइनेंशियल क्राइसिस होगा शायद इसीलिए आपने पढ़ाई छोड़ दी। कोई पैसा वैसा का पंगा नहीं था, वो एक टीचर से धनबल हो गई थी, जाना छोड़ दी, ठीक है। तो देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट विद माय टीचर, छोड़ दिया, चिल्ला दी थी उसने मुझे, नहीं जाना मुझे। सो ही स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल एंड आई स्टार्टेड सेलिंग सम गुड्स। हाँ, अगेन ही केम टू फादर स्टोरी कि मेरे पापा की डेथ ऐसी हुई कि दिवाली का दिन था, वो फोटो फ्रेम लटका रहे थे और सडनली खून की उल्टी हुई, उनकी डेथ हो गई। कुछ समझ में नहीं आया कैसे डेथ हो गई। हाँ, पर उसके बाद मेरी बहन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे जीजा जी ने हमारे को बहुत सपोर्ट किया और हम वहाँ से आगे बढ़े। और मैंने एक रिक्शे वाले की मदद से और एक काम वाले की मदद से एक पान का शॉप शुरू किया। पहले रायपुर में 8-10 साल काम किया, फिर हम उड़ीसा शिफ्ट हुए और जब हम शिफ्ट हुए तो एक होटल वाले ने मुझे छोटी सी एक जगह दी जहाँ से मैंने अपना पान का शॉप शुरू किया। फिर क्या था मैडम, बस काम ही काम, 24 घंटे काम, 7 दिन काम, कभी काम से फुर्सत ही नहीं मिली। 19 साल तक के मैंने एक दिन भी अपने घर पे नहीं बिताया और मैं कोई फैमिली ओरिएंटेड नहीं था, टाइम ही नहीं था मेरे पास काम के बिना। सो दिस इज व्हाट ही सेड। और क्या बताऊं, जैसे जैसे दिन पलटते गए, किस्मत भी पलटती गई। 1980 he progressed and he could manage open a bigger shop and he had 4 to 5 workers to help him and सुबह 5 बजे से दुकान चालू होती थी, रात को 11 बजे तक के रात को काम ही काम। Got my younger sister married, यानी उसने अपने घर की जिम्मेदारियां निभाई और छोटी बहन की भी शादी की। I had lot of work with good source of income। पैसा क्या, हाथ का मैल है मैडम, बहुत कमाया मैंने, गिनने की फुर्सत नहीं थी। लाता था अपनी बहन के हाथ में देता था, वही अकाउंट देखती थी। अपना तो काम था कि मशीन से नोट छापना है बस, और इसी तरीके से मैं कमाता गया। आर यू विथ मी? यू आर राइटिंग
totality, I'm not telling you the story, you have to give remedy also, huh? This is the way patient talks to you, right? And बस एक ही घटना हुई मेरी ज़िंदगी में, मैं आपको क्या बताऊँ। 1999 में जो मेरा ओनर था, जो होटल का ओनर था, वो वहाँ पे मैं तो इतना अच्छा कमाता था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। He used to talk like this only। फिर बाजू वाला एक आदमी था जो फ्रूट्स बेचता था, बोले पता नहीं उसको क्या बीमारी हुई थी, गया उसको हैदराबाद लेके गए, यहाँ की स्किन का कोई तो भी उसका बोले सैंपल निकाला और दिया टेस्ट करने। मैडम मेरा भी सैंपल निकालना पड़ेगा क्या टेस्ट करने के लिए? मेरे को भी ऐसी कोई बीमारी हुई है क्या जैसे उसका हुआ था? मेरे को बड़ा डर लगता है ना ये सब करने का, नहीं मेरे साथ। देन अगेन ही सेड, केम बैक टू द शॉप इंसिडेंट और बोलने लगे कि हाँ मेरा शॉप क्लोज हो गया था। वो ना वो ओनर था ना, उसके 2 बच्चे थे, बहुत पढ़ लिख गए, नवाबजादे हो गए वो तो, और फिर वो नवाबजादे तो ना मेरे होटल को चलाने देंगे। तो उन लोगों ने फैसला ले लिया कि वो बैंगलोर जाएंगे और बैंगलोर शिफ्ट होंगे। तो उस चक्कर में मेरा शॉप बंद हो गया और ओनर ने हमको बोला कि हम भी बैंगलोर शिफ्ट होने वाले हैं, तो आप एक काम करो, आप शॉप बंद कर दो। तो इस तरीके से मेरा शॉप बंद हो गया। अब मैं आपको क्या बताऊँ, यहाँ पे तो कोई काम ही नहीं था, तो मेरा काम ही बंद हो गया। 19 साल मैंने दिन रात सिर्फ एक ही काम किया, पान का शॉप चलाना, पैसा छापना, पैसा कमाना और घर आना। बोले इतनी भी फुर्सत नहीं थी। आपको मैं बताऊं, मेरा छोटा वाला बच्चा जो है वो पैदा हुआ, मेरी बीवी को 1 हफ्ते पहले लेके गया था मैं हॉस्पिटल, और डॉक्टर ने बताया कि 1 हफ्ते में डिलीवरी हो जाएगी। इतनी भी फुर्सत नहीं थी, इतनी ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी, डॉक्टर बोलो, प्रोफेसर बोलो, लॉयर बोलो, दुनिया भर के लोग आते थे मेरे पास। तो पर फिर क्या हुआ कि मेरे को इतनी भी फुर्सत नहीं थी कि बच्चा कब पैदा हो गया मुझे पता भी नहीं चला। वो तो एक रिक्शा वाला आया, उसने बताया अरे 1 किलो की मिठाई खिलाओ, आपके घर में बेटा पैदा हुआ है। हो गया बेटा पैदा, मैं तो गया भी नहीं हॉस्पिटल, आ गई बीवी घर। मैं तो इतना बिजी था, आपको क्या बताऊँ। प्रोफेसर बोलते थे कि थोड़ी सी दारू पिला दो, तो मैं क्या करता था, हाँ ठीक है भाई वो बोल रहे हैं थोड़ी सी दारू पिला दो, तो कोई बात नहीं, अपना फर्ज है, अपने पास तो काम वाले हैं, बेचारे लोग इतने बिजी रहते हैं, उनके पास तो काम वाले नहीं है, तो अपने किसी वर्कर को बोल देते थे कि जाओ उसके लिए दारू लेके आ जाओ। तो वो प्रोफेसर, लॉयर, सीए, सबसे दोस्ती आ रही थी मेरी, सब मेरे फ्रेंड्स थे। और आपको क्या बताऊँ कि मेरी इतनी फ्रेंडशिप थी कि सब मेरे यारी जिगरी हो गए थे, लेकिन अब घर का तो नहीं लगा। और इस तरीके से मेरी ज़िंदगी चलती रही और मैंने सिर्फ 24 घंटे 7 दिन 19 साल सिर्फ पैसा ही कमाया। और मेरे घर की जिम्मेदारी मेरे जीजा जी संभालते थे, क्योंकि अकाउंट्स आता नहीं था, 9वीं पढ़े लिखे थे, तो अकाउंट्स कौन देखेगा, तो जीजा जी देखते थे। पर उनकी भी डेथ हो गई, तो उनके जो 2 बेटे थे उनकी भी जिम्मेदारी मुझ पे आ गई, तो मैं अपना काम और आगे गया, और वो भी मुझ पे ही आश्रित थे। I would live my life with loyalty, hard work, discipline। जिंदगी में रखा ही क्या है, एक अच्छा इंसान बन जाओ, एक अच्छा दिल कर लो, पैसा क्या है वो तो आता ही जाता रहेगा। मेरे लिए तो जिंदगी में एक अच्छा इंसान बनना ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छे रिश्ते होना ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरी माँ की डेथ के बाद मेरी सिस्टर ने मुझे माँ का प्यार दिया और माँ का सहारा दिया। अब आपको एक और चीज़ घटना मेरी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट घटी, जो मेरा छोटा बेटा मैंने आपको बताया वो हुआ था, मुझे पता भी नहीं चला, तो मैं जा ही नहीं पाया मेरी दुकान के कारण। तो वो मेरे नेबर थे, एक आंटी थी मेरी फ्रेंड की मम्मी, उनको बड़ा गुस्सा आया कि ये आए ही नहीं देखने के लिए, तो उन्होंने बच्चे को बहुत प्यार देना चालू कर दिया, उन्होंने ध्यान रखा। मैंने भी सोचा कहाँ 3 बेटियाँ तो हैं, एक बेटा तो ऑलरेडी है, हो गया तो हो गया, 5वां से 6वां बच्चा हो गया, 4थे से 5वां हो गया, वो तो अपनी काम है, हो गए बच्चे। तो वो आते थे घर पे और उनको मेरे बेटे के साथ बहुत मोह हो गया, मोह यानी शी गॉट अटैच्ड टू माई सन एंड माई फ्रेंड्स फादर मेट विद पैरालिसिस। तो बच्चा बड़ा हो गया, ऐसे 9-10 साल का हो गया, और वो बच्चा उनकी केयर करने लगा, उनका ध्यान देने लगा। तो उन्होंने मुझे बोला तू तो ध्यान देता नहीं है बच्चे को, ला मेरे को ही देते इस बच्चे को। तो माई सन वॉज अनलीगली, मतलब रिटन पेपर डॉक्यूमेंट नहीं है, पर मेरे बेटे को उन्होंने ही पाला पोसा।
बेटे को उन्होंने लायक बना दिया, इतना लायक बना दिया कि वो बॉम्बे में जाके उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और आज वो बॉम्बे में जॉब कर रहा है। मेरा क्या था, मैं तो इस लायक था नहीं कि इतना बाबू बना दूँ, बड़ा अच्छा लगता है लेकिन बाबू बन गया वो। मैंने पूछा नहीं आज तक कि वो कितना कमाता है, पर अब उसकी शादी की जिम्मेदारी मेरी है, उसकी जिम्मेदारी हमारी है और मुझे ही उसकी शादी करना है। पैसा देना होगा सामने वाले दे देंगे और नहीं देना होगा तो सामने वाले पैसा नहीं भी देंगे, जरूरी नहीं है। फिर से उन्होंने वो बच्चे के जन्म की घटना को और इलैबोरेट किया। बोले कुछ नहीं, होटल थी आसपास, धुआं ही धुआं था और स्मोक ही स्मोक रहती थी, बस हम उसमें ही मग्न रहते थे। एंटरटेनमेंट तो कुछ था नहीं, तो सिर्फ गाने सुनना, रेडियो पे कोई मैच चल रहा था और बस यही सब चल रहा था। बच्चों की शादी तो मेरी हो गई है, बड़ा बेटा मैं नहीं पढ़ा पाया, छोटा बच्चे को तो उन्होंने पढ़ा के इंसान बना दिया, पर बड़ा बेटा अब काम कर रहा है, वो एक शॉप चला रहा है और अब वो शॉप मैं उसके साथ रायपुर में देखता हूँ और वो एक किराना शॉप चलाता है। वो किराना शॉप उसकी जिम्मेदारी भी मुझ पे ही है। वो तो क्या सिर्फ फ़ोन पे ऑनलाइन ऑर्डर लेता है, आप लोग क्या दिन भर तो मोबाइल में लगे रहते, काम ही काम क्या है आपको? काम तो हम करते हैं, आज भी लेबर के साथ पैकिंग करना, सामान डिस्पैच करना, कस्टमर हैंडल करना, वो हम करते हैं। बेटा तो क्या नालायक है, कुछ भी नहीं करता। तो ही स्टेइंग विद हिज एल्डर सन। मैंने पूछा अंकल आपको ड्रिंकिंग शिंकिंग की हैबिट है आंटी बता रहे हैं? हाँ मुझे लत लग जाती है। अब क्या बड़े बड़े लोगों के साथ मेरा उठना बैठना था, सारे वीआईपी लोग आते थे, डॉक्टर इंजीनियर आपके जैसे बड़े बड़े लोग आते थे, तो उन लोगों को मंगाता था। मैंने अपने पैसों से तो दारू नहीं पी भाई, उनकी आती थी और वो मेरे को पिलाते थे, बस ऐसे में लत लग गई। ही अगेन इंसिस्ट, आज भी मैं अपने पैसों से दारू नहीं पीता हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अगर कोई ब्रेकफास्ट में भी दारू पी रहा है तो फ्रॉम वेयर ही इज गेटिंग द मनी? मेरे पास तो सब आते थे। रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है और रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए अगर मुझे किसी को कोई मदद करनी पड़े तो मैं रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए कोई भी हद तक के जा सकता हूँ। तो मैंने कहा अंकल और किसी प्रकार से किसी की मदद की? बोले हाँ की ना, कोई गांजा मंगाता था तो वो भी प्रोवाइड कर देता था। और मैं एडिक्शंस करता गया। मैंने कभी हिसाब किताब नहीं रखा कितना पैसा कमाया और कितना पैसा गया। मेरे लिए तो पैसा उतना ज़रूरी नहीं है। हाँ अगर 100 कमाया है तो 10 रुपये अगर सेव हो जाए तो ठीक है, बाकी क्या है, कमाओ खाओ उड़ाओ ऐश करो मज़े करो, यही तो लाइफ है। और क्या, करोड़ों कमा लेता एक बिल्डिंग बन जाती, वो बिल्डिंग कौन संभालता? कोई बात नहीं, इसलिए जो कमाया है वो उड़ाओ मज़े करो। मेरे को तो सिर्फ नाम चाहिए। और मैडम जी आपको क्या बताएं, मैं तो बड़ा फेमस था, मेरे हाथ में हुनर है लोग बोलते हैं, और मेरे हाथ में कला है पान बनाने की। 100 किलोमीटर दूर से मेरे पान के शॉप में लोग पान खाने आते थे। आपको क्या बताओ, स्टेशन के बिल्कुल सामने पान की दुकान थी, लोग बोलते थे अरे उस गांव में जा रहा है तो उस पान वाले के पास ज़रूर जाना, उसके हाथ का पान खा के आना। तो मेरे हाथ में तो कला है और मैं पान बना सकता हूँ। सीधा लैंग्वेज ही से मेरे को कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए, बाकी सब भगवान की कृपा है। मनी क्या है? मनी तो सिर्फ एक साधन है, एक जरिया है जिंदगी जीने का। इम्पॉर्टेंट तो हमारे लिए एक अच्छा दिल और एक अच्छा सेहत होना ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या है, आपने ये जो मेकअप वेकअप किया है, ये मेकअप तो 2 दिन चलेगा। आपके लिए क्या है? लग्जरी मतलब एक मोबाइल ले लिया, एक अच्छा सा लैपटॉप ले लिया, एक गाड़ी ले ली, इससे क्या होगा? अरे ऐश करो लाइफ में, ज़रा ज़िंदगी जियो। हम देखो पैसा हमारी बैंक में नहीं है, लेकिन हमने बहुत पैसा कमाया और बहुत नाम कमाया है अपनी ज़िंदगी में। आपके जैसे मोबाइल तो हमने मीना बाजार में बिकते हुए देखे हैं 16 रुपये में। आप लोग जो मोबाइल चलवाते हो, आज भी मेरे हाथ में मोबाइल नहीं है।
एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग, ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी तो एक सफ़र है, हम एक चुंबक की तरह इस ज़िंदगी में जी रहे हैं, ना 200 किलोमीटर ऊपर जा सकते हैं, ना 200 किलोमीटर नीचे आ सकते हैं। हम तो एक भगवान की तरह एक पपेट है जो इस गुरुत्वाकर्षण में घूम रहे हैं। आप चाहो 200 किलोमीटर ऊपर जाना तो आप एक एरोप्लेन में बैठोगे, लेकिन नीचे जाना है तो आपके पास कोई एरोप्लेन नहीं है। सो दिस वे ही स्टार्टेड टॉकिंग एंड स्टार्टेड गिविंग मी ऑल द ज्ञान ऑफ हाउ गॉड वर्क्स। तो भगवान क्या है, वो सिर्फ हमको यहाँ पे नचा रहा है और एक गुरुत्वाकर्षण में हम घूम रहे थे। लेकिन अब मैं क्या बताऊँ, दुकान तो बंद हो गई और दुकान बंद होने का बेटा संभाल रहा है, मेरा मन नहीं लगता। मेरे को ऐसा लगता है कि दुकान होती तो सब कुछ होता, दुकान होती, अब क्या है ना, मैं आपको कैसे बताऊँ। पिछली बार कुछ समय पहले मैं गिर गया था गड्ढे में दारू पी के, फिर तो मेरे बेटे ने मेरी हड्डी पसली एक करी और बहुत वार्निंग करी कि अब दारू नहीं पीना। 5 साल में मैडम आपकी भाषा में क्या होता है, तांत्रिक विद्या, शायद तो वो तांत्रिक विद्या हो गई थी और मेरा दारू पीना सडनली बंद हो गया। कुछ तो दवा, तंत्र मंत्र क्या था पता नहीं, मैंने 5 साल हाथ भी नहीं लगाया। और वो बेटे का तंत्र था कि मेरा मंत्र था, लेकिन 5 साल मैंने दारू को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन फिर से मैंने चालू कर दिया। बोले मैं बहुत फेमस आदमी हूँ, आपको नहीं पता मैं कितना फेमस हूँ। मेरा पान का शॉप आज भी मदर पान शॉप के नाम से फेमस है। और फिर क्या, पान शॉप बंद हो गया, उसके बाद किराना शॉप बन गया, और फिर अब देखो मैडम, मैंने कहा अंकल इतनी ज़्यादा आपको लगाव थी तो आप दूसरा पान शॉप शुरू कर सकते थे। मैडम लोकेशन की कोई चीज़ होती है कि नहीं? क्या आप कब्रिस्तान में जाओगे, सीधा एग्जाम्पल इज गिविंग, कोई कब्रिस्तान जाएगा तो कौन सी दुकान खोलेगा? चाय की दुकान खोलेगा तो चली जाएगी, पान की दुकान खोलेगा चल भी जाएगी, लेकिन क्या कब्रिस्तान में कोई किराना की दुकान खोलेगा? क्या मैडम आप भी बात करते हो, वैसी लोकेशन तो मिलनी चाहिए ना जहाँ पे ठीक हो सके। तो ही स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग मी कि मैं दुकान क्यों नहीं खोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई लोकेशन नहीं मिली। और अब 50 लोगों से भी बातचीत नहीं हो पाती है मेरी। हाँ, मुझे ऐसे लगता तो है कि पान की शॉप मेरा हुनर तो है, सब लोग मुझे बोलते हैं कि मैं बहुत स्किल वाला हूँ और मेरे हाथ में कला है और मुझे दुकान खोलनी चाहिए और मेरे को फेमस करना चाहिए। लेकिन मैं सोचता हूँ बच्चों के साथ कौन चिक चिक करे, इसलिए ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है अगर मैं दुकान खोलूँगा तो शायद मैं दुकान को टाइम ना दे पाऊँ, मेरा मन नहीं लगेगा दुकान पे। मैंने कहा अंकल अभी तो आप बोल रहे थे कि मन लगेगा, आपका तो पैशन है, आपके हाथ में हुनर है, आपके हाथ में कला है। बोले लेकिन क्या मैं दुकान पे आपको टाइम नहीं दे पाऊँगा? मैंने कहा ठीक है अंकल कोई भी दुकान खोल लीजिए। बोले वो घर पे बच्ची है ना छोटी, तो मेरा मन उस बच्ची में लगा रहता है और उसको देखना पड़ेगा। अगेन ही जम्प टू हिज सन कि मेरे सन की अब शादी है 1 महीने के बाद और उसकी जिम्मेदारी मेरी है, तो अगर मैं पान का शॉप खोल दूँगा तो मैं किस तरीके से पान का शॉप चलाऊँगा और मैं कैसे काम संभालूँगा, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी मेरी है। और मेरा बेटा तो उनका हो चुका था, लेकिन उन्होंने अभी मेरे से ये बोला है कि हमने इसको पढ़ा लिखा दिया है, अब आपको शादी खुद को ही करानी है। अब मैं आपको बताऊँ कि दुकान बंद होने से घर की कंडीशन बिगड़ गई। मेरी बीवी को पहले आदत थी पैसों की गड्डी संभालने की, और दुकान बंद होने के कारण जब हम 5 साल बहुत बुरी कंडीशन में थे, तो जिसको पैसे नोट की गड्डी मिले, अगर उसको पैसे संकोच के काम करना पड़े तो वो इंसान कैसे काम करेगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वाइफ इसीलिए चिक करती रहती है पूरा टाइम मेरे पीछे कि पैसों के लिए। अब उसको कैसे समझाऊँ कि ठीक है पापा पहले अच्छे दिन थे, अब अपने बुरे दिन हैं। हाँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपने पोजीशन से सेटिस्फाइड हूँ, हमेशा से सेटिस्फाइड हूँ। आपको पता है कि मेरा बेटा अब बहुत बड़ा अफसर बन गया है और हमारी सिंधी कम्युनिटी में बिजनेस करना तो सबको आता है, लेकिन एक सिक्योर जॉब मिलना बहुत बड़ी बात है। और मेरा जो छोटा बेटा है अब वो एक अच्छे जॉब में है और एक बहुत अच्छी ऑफर उसको आई है। उसका पैसा वैसा नहीं पूछता है, पर मुझे उससे बड़ा ही लगाव है।
साल में एक बार, और वो मैं बहुत प्राउड हूँ क्योंकि अब उसकी शादी होने वाली है और लड़की बहुत अच्छी है। मैंने आपको बताया ना कि मैं ग्रीडी नहीं हूँ मनी के लिए, वॉट एवर हैपन्स इज हैपन्स फॉर द गुड। उन्होंने कैसे बोला ये चीज़ कि मैडम मैंने बताया ना मेरे को पैसा मतलब हाथ का मैल है, आप क्या बार बार बीवी बैठी हुई थी क्या बार बार पैसा पैसा करती है। बोले पैसा क्या है, हम तो भगवान के नमूने हैं और भगवान की कठपुतली है। और मेरी बीवी तो दिन भर मेरे से लड़ती रहती है क्योंकि उसको फ्यूचर के बारे में चिंता होती है, और मैं बोलता हूँ क्या फ्यूचर के बारे में सोचना, फ्यूचर क्या है, हम तो भगवान के जो होना होगा अच्छा होगा। और मैं तो क्या हूँ साधारण इंसान जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं, तो मैं तो क्या अपनी ज़िंदगी एक गिलास पानी में भी गुजार सकता हूँ, तो मेरी तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, कुछ करना ही नहीं मुझे, मैं तो फटे कपड़े में भी घूम लेता हूँ, तो मेरी तो नीड है ही नहीं। अब लेकिन इसकी तो है, और ये मेरे को बार बार ब्लेम करती रहती है और बार बार लड़ाई करती रहती है, और उसको पता है कि मेरी कैपेसिटी क्या है, और मैं पैसा, मेरे लिए पैसा कोई बाउंड्री नहीं है। और पैसा क्या है, वो तो हमारे पीछे घूमेगा। फिर अगेन ही स्टार्टेड टॉकिंग, बोले मैडम क्या है कि भगवान ने तो एक जबान बनाई है, दो आँख बनाई है, आँख तो चली जाएगी, एक आँख नहीं है तो दूसरी आँख काम कर लेगी, एक लंब नहीं है तो दूसरा, लेकिन भगवान ने जबान एक ही दी है, तो एक जबान दी है तो उसको संभाल के इस्तेमाल करना चाहिए ना। तो फिर ही केम टू हिज डॉटर इन लॉ, और उन्होंने बताया कि मेरे को पसंद नहीं आता कोई मुझे ऐसे शब्द बोले जो दिल को चुभ जाए, क्योंकि शब्द हम वापस नहीं कर सकते, जबान एक ही है तो उसको हमको संभाल के इस्तेमाल करना चाहिए। और मेरी जो बहू है वो बहू प्रॉपरली मुझसे बात नहीं करती। अभी मेरी बीवी कहीं गई थी 6 दिन के लिए, तो मेरी बहू ने मुझे खाना नहीं परोसा 6 दिन, बोले 6 दिन उसने खाना ना बनाया ना खिलाया, मैंने नहीं खाया उसके हाथ का खाना, जाता था समोसे खाता था और दिन भर दारू पीता था और दिन भर घर पे रहता था। तो मुझे वो नहीं चलता गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करना। और आपको ये बता सकता हूँ मैं कि उस समय ऐसा था, जवानी का जोश था, बच्चे छोटे थे, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था, तो मैं 24 घंटे काम करता था और कस्टमर हैंडल करता था, और मेरे हाथ का कस्टमर दोबारा मेरी दुकान पे ज़रूर आता था। और मेरा कोई कॉपी नहीं है और मेरे पास कोई चीज़ छुपा नहीं है, मेरा हुनर जो है पूरा जग जाहिर है, और मैं इतना फेमस हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अब मैं उतना समय नहीं दे पाऊँगा, और अपने घर पे मेरी नाती है उसमें मेरा दिल लगा रहता है, तो इसलिए मैं अब दुकान शायद ही खोलता हूँ, और क्या पता अब मेरी दुकान चले या ना चले। इसीलिए मेरे दिमाग में ना अब ये फितूर रहता ही है, अब मैं क्या करूँ, चलो मन तो लगता नहीं कि कन्फेक्शनरी की दुकान में, मन तो है पान की दुकान पे, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं लगता है कि वो मेरी दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी। अगेन ही सेल्स कि पैसा मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, मेरे लिए कस्टमर का सेटिस्फैक्शन ज़रूरी है, और ज़िंदगी भर जिससे मेरा दुकान से अटैचमेंट रहा उसको छोड़ना मेरे लिए बहुत कठिन है, और मेरे को दिन रात सिर्फ उस दुकान के ही ख्याल आते हैं। और आज भी अगर कोई मुझसे बोले तो मैं दुकान खोलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या मेरा ओनर फिर से मुझे सपोर्ट करेगा मेरे को नहीं पता। मेरा बेटा मुझे सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता है कि उसका बाप एक पान शॉप चलाए। आज तो उसको किराने का दुकान है तो उसका मान सम्मान है, अपना कौन मान सम्मान करता है। बोले लोग दारू से नफरत करो ना, हमसे क्यों नफरत करते हैं, लेकिन मेरा बेटा मुझसे नफरत करता है और मेरी बहू मुझे चिढ़ती है। तो आपको ऊपर के तन से नहीं अंदर के मन से प्यार करना चाहिए। मेरी गलती क्या है? हाँ, जब डिफ़िकल्ट वक्त आया था तब भी बहुत मुश्किल से मैं अपने दारू के पैसे का जुगाड़ करता था। उस समय मेरी बेटी जो है वो ब्यूटिशियन का काम करती थी और मेरी वाइफ जो है वो पापड़ बेच के मुझे बहुत हेल्प करती थी। लेकिन अब बेटा पीछे पड़ा है और मेरे को उसने
चाय भी बंद करा दी। और मैडम क्या बोलूँ, इनको कौन समझाए, कोई चाय से बीमार पड़ता है क्या? तो इनके हिसाब से चाय से बीमार पड़ता है सिंस बिगनिंग। और क्या, और मेरी बहू और बीवी सिर्फ मेरे पीने के पीछे पड़े रहते हैं। मेरी बेटी बोलती है मुझसे, बोले कहीं शादी में जाना हो तो आपको साथ में नहीं लेके जाएंगे। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, इस दुनिया में जब अकेले आए थे तो क्या किसी शादी में हम किसी के साथ की ज़रूरत है? अकेले चले जाएंगे, किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत बुरा लगता है जब वो इस तरीके से मेरे साथ व्यवहार करती है। और मेरी बीवी तो मेरा सपोर्ट है, और मैं पीता हूँ, वो चिल्लाती है तो ठीक है, क्या बात का बुरा मानना, लेकिन वो मुझ पर विश्वास नहीं करती। ठीक है, ना करे विश्वास, ना करे मुझ पर ट्रस्ट, मैं तो वैसा ही हूँ और कोई चीज़ बदलने नहीं वाली है ज़िंदगी में। मेरे को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन मैं अपना गुस्सा दबा के रखता हूँ। मेरी मेमोरी बहुत शार्प है, मुझे बहुत याद रहता है। एक बार अगर किसी शेड्यूल को देख लिया ट्रेन के, तो आप लोग क्या है पूरा टाइम मोबाइल में रीचेक करते हो, कब बैठना है, कब ट्रेन से उतरना है। मैं नहीं देखता, ऐसे ही मेरे को किसी ने बोला हुआ है, वो बातें मेरे दिमाग में याद रहती है, मैं कभी भूलता नहीं हूँ। ठीक है, नाउ दिस इज द कंप्लीट केस। Going back